Hello guys, welcome to my video. Today I'm gonna talk about how to create a server with Node.js. Yeah, you heard it right, a server. So first of all, a question come in your mind that what is server, right? Server is nothing but a bunch of program that's run in a specific computer on specific port number, which is connected to the internet, right? So let's jump into the coding part. So here, first of all, I download some tools or tech. Then after we jump into the code. So first of all, we go to the Chrome browser. You look at here. Here is a Chrome. You just click enter. You jump into the URL. First of all, you need a code editor or text editor. You have to write somewhere your code. So wherever you write, you need some platform or some copy. If you write notes on your daily life or anything you daily task, then you have to write and then के अंदर आपने क्या किया है या आपने कुछ हिसाब करना है तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा ना किसी कॉपी में या नोटबुक में. उसी दौरान आपके सिस्टम में भी एक नोटबुक की ज़रूरत पड़ती है और उसी नोटबुक को कहते हैं हम टेक्स्ट एडिटर. ऐसे वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स आर देयर बट आई प्रेफर मोस्टली Visual Studio Code. Several are there like Sublime Text, Visual Studio Code, Eclipse are there. Most of all, I prefer Visual Studio Code. So it's developed by Microsoft, very preferable. I also use Visual Studio Code. But right now, focus on that coding part, not give it into the lecture. So right here, you just search a VS Code, VISUAL. Visual Studio Code, Visual Studio Code, just like it. Tap and enter. You direct enter to the Visual Studio Code based on your internet connection. You see here like this one. So click in this first link, directly redirect to this portal. So download for Windows. It's already in here. See, look it in here. It's already in here. Symbol look in my cursor here, over here. I hope you seen this, right? So here you are. You're looking at my cursor where I'm pointing here. Download for Windows. You already have it, but before I don't have this. You have to mention in here like download for Windows, download for Mac, download for Linux, and many more based on this 3 operating system. Okay, so thanks for Microsoft. They already built based on our operating system. They already identify which operating system we use. So here is VR. So I have already downloaded the Visual Studio Code. So look here, they all prefer see their code editor like very easy, and so I already downloaded Visual Studio Code. I don't need to, so you have to download that code editor or Visual Studio Code. So आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा इसको. अगर इससे ना है आपको बेस्ड अपॉन अगर दूसरा भी है आपको प्रेफर मैंने जो कहा है Sublime Text, आप उसी भी डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे Sublime Text है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड फॉर विंडोज़, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे. Sublime Text ये भी है, और एक है Eclipse जो बेसिकली जावा के लिए यूज़ होता है. वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट Sublime Text और Visual Studio Code बहुत ही अच्छा है. आप देख सकते हैं, आप यूज़ कर भी कर सकते हैं. इससे मोस्टली प्रेफर मैं करता हूँ Visual Studio Code. मैं भी यूज़ करता हूँ, आप यूज़ कीजिए, बेस्ट होगा. सो इतना होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए. फिर आते हैं हमारे यहाँ पे एक फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क, सॉरी करेक्शन। फिर हमें चाहिए एक environment to write a code. So what is Node.js? Node.js is nothing but if environment. It create an environment. ये एक environment create करके देता है ताकि हम JavaScript में हम प्रोग्राम लिख सके। JavaScript बेसिकली बनाया गया था ब्राउज़र के लिए, जैसे क्रोम ब्राउज़र, किसी भी क्रोम ब्राउज़र है, गूगल का क्रोम ब्राउज़र जो हमारे मोबाइल में सिस्टम में ऑलरेडी रहता है बेसिक, जो क्रोम ब्राउज़र, और दूसरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहता है सिस्टम का, जैसे कि आप वीवो का लीजिए उसका अलग से ब्राउज़र रहता है, जैसे कि रेडमी का लीजिए उसका अलग से ब्राउज़र रहता है। बट मोस्टली हम लोग मोबाइल लेते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है, तो वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र बेसिकली रह जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्रोम ब्राउज़र ही हम प्रेफर करेंगे मोस्टली। तो आजकल क्रोम ब्राउज़र ही होता है, जैसे कि मेमोरी पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग CPU पार्ट हो गया, जैसे ये नेटवर्क पार्ट हो गया, हर एक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं उस प्रोग्राम के ज़रिए। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ही क्या होता है, एक सिस्टम में सारी चीज़ों को एक्सेस करना, उसे मैनिपुलेट करना और नया सा चीज़ बनाना ताकि लोगों को हेल्प हो सके। बट जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र में चलता है, उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि आउट ऑफ द ब्राउज़र भी यूज़ हो सके। तो इसीलिए Node.js बनाया गया है ताकि जावास्क्रिप्ट आउट ऑफ द ब्राउज़र भी यूज़ हो सके और हमारे फाइल सिस्टम जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट इट फुलफिल, ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो Node.js बना है C++ से, और ब्राउज़र के जो इंजन है, जो हमारा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट जिस इंजन में चलता है उसका नाम है V8 इंजन। तो इस V8 इंजन जो होता है, ये जो कोड होता है, V8 इंजन कुछ नहीं है, कुछ हार्ड डिस्क नहीं है, कुछ फिजिकल चीज़ नहीं, वो एक प्रोग्राम है, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से और C++ की मदद से एम्बेड करके, दोनों को एम्बेड किया, एक साथ जोड़ के एक जो फाइल निकला, जो प्रोग्राम लिखा गया, उस फाइल को हम लोग Node.js बोलते हैं। उसी Node.js के ऊपर हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे ताकि रन हो सके, हमारा सर्वर क्रिएट हो सके, राइट? वही है, वो बैकएंड साइड में होता है। Node.js कोई फ्रंट एंड साइड में नहीं। और वन मोर थिंग, Node.js कोई फ्रेमवर्क नहीं है, Node.js कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट Node.js इज नॉट अ framework, not a programming language, not a scripting language, nothing. It's just a platform, it's just a background, it's create a background. Okay, you just write a program and create a server, you need whatever you want. Okay, so I hope you understand what I'm saying. So right now I just type in Node.js. Let's get back to the Node.js part. So here you just click the first link. See in here is a Node.js. So run JavaScript everywhere. See, it's already telling you that run JavaScript everywhere. Node.js is a free open source cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command lines, tools and scripts. So जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, that Node.js is a free and open source, सबके लिए अवेलेबल है, पहले नहीं था, बट पहले फ्री, अभी फ्री है, ओपन सोर्स है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये हर जगह यूज़ होता है, हर कंप्यूटर में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, मैक ओएस में, एंड्रॉयड में, लिनक्स में, एवरीवेयर, व्हाटएवर यू नीड एट प्रेजेंट। मतलब आपको जहाँ भी आपकी ज़रूरत है, मुझे याद कीजिए, वो हाजिर है। तो जस्ट लाइक दैट, Node.js is a free, just not a programming language, just a creative, it's a software which create a program, which just create a platform that you write a code on JavaScript that based on your requirement. So Node.js is a free open source cross platform JavaScript runtime environment. See, मैंने कहा था ना, एक runtime environment है, JavaScript runtime environment that lets developers, मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, देखिए तो एक ही तो बात, डेवलपर्स क्रिएट सर्वर्स, जैसे कि मैंने कहा सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट का जो ऐप होता है वो क्रिएट कर सकते हैं, कमांड लाइन टूल्स, मतलब एक कमांड जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ CMD हमने टाइप किया, ये जैसे
आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो भी सर्च कीजिए सभी के सभी आपके मेमोरी सिस्टम से, मेमोरी, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, जो भी होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जितने भी कंपोनेंट्स है सभी के जानकारी यहाँ पे आप कमांड देके एक्सेस कर सकते हैं। ओके तो वही चीज़ है, तो वो भी आप बना सकते हैं। इन स्क्रिप्ट्स आप स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इन नोड.जेएस। सो ये आप यहाँ पे डाउनलोड नोड.जेएस LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, आप यही डाउनलोड कीजिए। ये जो डाउनलोड नोड.जेएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये आप डाउनलोड कीजिए। और दूसरा है बट वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट आपको दिखा देता है, जो प्रोडक्शन ग्रिड में वो यूज़ होता है। बट डाउनलोड नोड.जेएस LTS मोस्टली प्रेफरेबल, आप यही डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड करने के बाद अब आपको सॉफ्टवेयर यूज डाउनलोड करना आता ही होगा, नोड.जेएस नेक्स्ट करके जाइए, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो बहुत हो गया लेक्चर पार्ट, थ्योरी पार्ट, एंड हमने जो रिक्वायरमेंट था हम लोग का वो हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोड एडिटर, मतलब टेक्स्ट एडिटर जो है विजुअल स्टूडियो कोड, और दूसरा नोड.जेएस। सो चलिए कोडिंग पार्ट में इतना शायद हो गया हमारे लिए। तो अभी हम हमारा VS कोड को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। अब देख सकते हैं ये इस तरह दिखता है, जैसे कि यहाँ पे लोगो है, फाइल है। तो किसी भी चीज़ को अगर फाइल्स को एक ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम फाइल क्रिएट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको गिटहब लिंक, कुछ भी आप लिंक कर सकते हैं, अपने फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करवा सकते हैं, किसी और चीज़ से कंट्रोल भी कर सकते हैं इस चीज़ से। जैसे कि यहाँ पे बग आप टेस्ट कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम में कुछ बग है तो आप बग टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन है, बहुत सारे एक्सटेंशन मिल सकते हैं, आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। इन फर्दर अगले वीडियो में कभी किसी चीज़ प्रोग्राम, अगर किसी चीज़ की वीडियो बनाते वक्त, आप किसी चीज़ का प्रोग्राम लिखते वक्त अगर हमें कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़े तब हम इस चीज़ से ले सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को अभी बाद में देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे अकाउंट्स है, आपको दिखेगा, बट इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इट्स मस्ट प्रेफरेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट अ फाइल वन, not a file, a folder. So not in here. मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली ये फाइल प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे न्यू फाइल, ओपन फोल्डर में हम जाके एक, जैसे कि यहाँ पे सी ड्राइव में हम जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, नोड.जेएस, लर्निंग, नोड.जेएस लर्निंग। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, सेलेक्ट फोल्डर, बस ये हमारा फोल्डर खुल चुका है, नोड.जेएस लर्निंग। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है शायद नोड.जेएस लर्निंग। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर बन के रेडी हो गया। तो हम लोग क्या रख रहे हैं, फोल्डर बनाए। पहले हम फोल्डर ही बनाते हैं ना, उसके बाद ही तो उसके अंदर फाइल्स रहते हैं, ना कि फाइल्स ऊपर रहता है, फोल्डर ही रहता है पहले। तो फोल्डर हमने बना लिया। उसके बाद हमें बनाना है एक फाइल क्रिएट करना है। तो फाइल हमने क्लिक करना है, उसके बाद हम लिखेंगे index.js। आपको पता है कैसे मैंने फाइल बनाई? यहाँ पे जस्ट आपको ये मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे न्यू फाइल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आएगा, एक पॉपअप आएगा, वहाँ पे आपको नाम लिखना है, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास जो है। index.js मोस्टली इंडेक्स ही प्रेफर होता है, बट यहाँ पे इंडेक्स प्रेफर करेंगे। तो ये हमारा हो गया। जैसे ही हमने एंटर किया हमारा फाइल बन के रेडी हो गया। अब देख सकते हैं फाइल बन के रेडी हो गया। और उसके बाद हमें सर्वर बनाना है, तो उसके पहले हमें जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट अभी बाद में सीखेंगे, पहले हम सर्वर नोड.जेएस सीख लेते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट मैं जब वीडियो लाऊंगा, जावास्क्रिप्ट का एक वीडियो लाऊंगा एक बड़ा सा, तब आप जावास्क्रिप्ट सीख पाएंगे। बट जावास्क्रिप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लैंग्वेज आजकल के एरा में आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो जावास्क्रिप्ट आना ही है, बिना जावास्क्रिप्ट के कुछ नहीं होता। मतलब और भी है, जावा है, पाइथन है, गोलैंग है, और भी बहुत लैंग्वेज है, बट जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस के लिए जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट आप कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो अब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों से एक बार सीखिए, दोनों से हो जाता है। आप फ्रंट एंड भी आराम से बना सकते हैं, बैक एंड भी बना सकते हैं, फुल स्टैक एक सॉफ्टवेयर एक बना सकते हैं आप एक लैंग्वेज से। बट अगर आप अलग अलग फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड में कुछ अलग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, गोलैंग हो गया, रूबी या रेल्स हो गया, या तो PHP हो गया, आप अलग अलग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। बट जावास्क्रिप्ट अगर सीख ले तो आप फुल स्टैक पूरा बना सकते हैं, एक ही लैंग्वेज से दोनों साइड कवर हो रहा है, फुल स्टैक हो जाएगा। तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको कल इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्रैक करना है, कुछ दिन बाद इंटरव्यू है, तो आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं आराम से, आराम से कर सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके पहले हमें नोट.जेएस आना चाहिए, बट नोट.जेएस अभी नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसे करते जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्मिनल खोलते हैं पहले, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। कैसे मैं आया आपको पता है ना, जैसे कि ये 3 डॉट्स दिख रहा है ना, ये 3 डॉट्स मेरे कर्सर पे, 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद एक टर्मिनल, ये टर्मिनल आया, न्यू टर्मिनल करने से ये खुल जाता है। दैट्स इट। जैसे ही टर्मिनल खुला, देखिए ये ps.personal system सी ड्राइव में मैंने वो ये लर्निंग नोट.जेएस लर्निंग आपको याद होगा शायद आपको याद होगा शायद, ये नोट.जेएस यहाँ पे दिख रहा है। सो इसी में हम वो कोड लिखेंगे। तो अभी कोड लिखना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, वो है HTTP मॉड्यूल। वो सिर्फ नोट.जेएस प्रदान करता है, वो नोट.जेएस प्रोवाइड करता है। बाकी आप जावास्क्रिप्ट से अगर आप ब्राउज़र में लिख रहे कोड तो HTTP मॉड्यूल यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ नोट.जेएस प्रोवाइड कर सकता है। तो नोट.जेएस इसीलिए हमने डाउनलोड किया था कि वो मॉड्यूल एक्सेस हो सके। तो देखिए हम इसको लिखते हैं const, ये const क्या है? const एक डेटा टाइप है। जैसे कि आपको अगर प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती तो एक डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप से आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो const एक डेटा टाइप है, int, float है, let है, var है, बहुत सारे ऐसे हैं। बट जावास्क्रिप्ट में const, let, var ये सब है, आप उसी से काम चलाना होगा। तो जावास्क्रिप्ट जब सीरीज़ लाऊंगा तब आपको अच्छे से पता चलेगा क्या चीज़ क्या है। तो बट अब अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे फॉलो कर दिए। देखिए कॉन्स्ट एक डेटा टाइप है, कांस्टेंट मतलब जो भी वो वेरिएबल, जो भी आप नाम, कांस्टेंट जो डेटा टाइप है उसमें जो आपका वेरिएबल नाम होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे HTTP एक उस वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का नाम मतलब एक कंटेनर बन गया, एक डिब्बा बन गया, डब्बा, उस डब्बे में आप कुछ रखेंगे। कॉन्स्ट एक डेटा टाइप है, उस डब्बे का टाइप है। सपोज एक आपने सब्जी एक गमले में चावल है, तो वो दोनों गमले का टाइप तो एक ही नहीं है, एक गमले में चावल है, एक गमले में सब्जी है, बट दो जो आइटम है उसमें जो आइटम है उसका टाइप अलग अलग है। उसका टाइप एक में सब्जी है और एक में चावल है। तो वही कांस्टेंट उसमें जो वो जो वेरिएबल कंटेनर, ये जो HTTP नाम है, वो जो कंटेनर बना है उस कंटेनर में अभी तक नहीं बना, बनेगा जब कंपाइल होगा तब बनेगा। अभी सिर्फ डिफाइन हुआ है, डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, जब कंपाइल करूँगा तब बनेगा। ये जो HTTP जो कंटेनर है उसमें हम कुछ रखेंगे। क्या रखेंगे? जैसे कि आप इक्वल टू रिक्वायर HTTP, हाँ बिल्कुल ऐसे HTTP हम यहाँ पे सेव करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। आपको सेव करना है या नहीं करना है, देखिए यहाँ पे वाइट डॉट आएगा, जैसे कि हमने ऐसा किया, देखिए यहाँ पे एक वाइट डॉट आ रहा है, देख सकते हैं आप, मेरा कर्सर यहाँ पे वाइट डॉट आ रहा है। तो इस वाइट डॉट को अगर मैं वापस Ctrl दबा के S दबाया तो वो चला जाएगा, सेव हो गया।
फाइल में जो आपने फाइल बनाया index.js, यहाँ पे जो आप फाइल बन देख रहे हैं index.js, यहाँ पे वो सेव हो गया। तो हमने ये पहला कोड बना लिया, const http equal to require http। उसके बाद और एक चीज़ लिखना पड़ेगा, constant localhost, मतलब IP एड्रेस। ये हमारे पर्सनल, लोकल होस्ट मतलब हमारे पर्सनल सिस्टम का IP एड्रेस। अभी IP एड्रेस और पोर्ट नंबर क्या होता है? देखिए, IP एड्रेस एक ऐसा चीज़ होता है जो हमारे नेटवर्क का कोई अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो एक जगह है, सपोज एक IP एड्रेस एक जगह है, और उस जगह में, उस एरिया में, सपोज आपकी कॉलोनी हो गया, आपकी जो एरिया है, सपोज आपका घर गुवाहाटी में है, तो सपोज गुवाहाटी के एक जगह में, सपोज एक गुवाहाटी का एक जगह, फेमस जगह ले लेते हैं गणेशगुड़ी पकड़ लीजिए, वो आपका विलेज है, वो आपका जगह का नाम है। और जो आपका घर है, उस गणेशगुड़ी के घर, जो जहाँ पे आपका घर है, वो घर आपका पोर्ट नंबर होगा। जैसे कि हाउस नंबर जैसे हमारा होता है ना, पोर्ट नंबर, जैसे हाउस नंबर होता है 6330 6730 समथिंग लाइक दैट, एज इट इज पोर्ट नंबर। तो हमारे सिस्टम का जो नेटवर्क है, नेटवर्क का जो एड्रेस है, वो एड्रेस हमारा IP एड्रेस, मतलब लोकल एड्रेस, लोकल होस्ट हम शॉर्ट टर्म में, टेक्निकल टर्म्स में हम लोकल होस्ट कहते हैं। बट IP एड्रेस जो हमारा लोकल होस्ट का है, हमारे सिस्टम का, पर्सनल, हर एक का होता है, जितने भी, नॉट मोबाइल का अलग है, मोबाइल का अलग है, बट हमारे लैपटॉप या सिस्टम या कंप्यूटर में जो भी हम कहते हैं, हमारे लोकल होस्ट पर्सनल कंप्यूटर PS पर्सनल सिस्टम्स का जो IP एड्रेस होता है वो 127.0.0.1, ये हमारा लोकल होस्ट है, लोकल IP एड्रेस। हमारे हर एक सिस्टम की, जितने भी दुनिया में हमारे इंडिया में जितने भी सिस्टम कंप्यूटर लैपटॉप बनते हैं, वहाँ पे उसका लोकल होस्ट 127.0.0.1 इतना ही होता है। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट, आपका सर्वर जब डिप्लॉय कर देंगे इंटरनेट में, आप सर्वर में दूसरे AWS या गूगल क्लाउड या एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में आप जब डिप्लॉय करेंगे, आपको छोड़ देंगे उस ऐप को, मीन्स टोटली लाइव चल रहा है आपको ऐप, तब वो IP एड्रेस चेंज हो जाता है। तब वो लोग प्रोवाइड करता है IP एड्रेस, उसी के बेस आप वो IP एड्रेस, मतलब वो जो एड्रेस, उसी के एड्रेस के अंदर यूज़र्स, जो क्लाइंट होता है, जो अलग अलग लोग आपको ऐप्स में जब आएंगे, तब उसी IP एड्रेस के थ्रू आएंगे। तो IP एड्रेस एक एड्रेस हो गया, और उस एड्रेस में जो आपका घर है, कॉलोनी है, जो जहाँ पे आप रहते हो, उस घर का पोर्ट नंबर, एड्रेस, पोर्ट जो घर नंबर है, हाउस नंबर है, वो आपका पोर्ट नंबर हो गया। और एक चीज़ है, जैसे कि हम const port equal to something 8005 ले लीजिए, 8005। आप कम भी ले सकते हैं, 8005 प्रेफरेबल है, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 9005 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो इतना तो हो गया, हमने पहले लोकल होस्ट, मैंने बता दिया IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे नेटवर्क में। बिना IP एड्रेस का आप ना तो कुछ आपके सिस्टम में ना तो कुछ चीज़ आएगा, ना तो आप कुछ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ना तो कोई रेस्पॉन्स आ सकता है। IP एड्रेस ऐड होना ज़रूरी है, आपके हर एक सिस्टम में होता है, एक एड्रेस होता है, ताकि उसी के अंतर्गत दौरान आता है उसमें जो रिक्वेस्ट, वो एड्रेस हो गया। और उसके बेस्ड ऑन आपका जो पोर्ट नंबर है, ऐसे बहुत सारे पोर्ट हैं हमारे सिस्टम में, बहुत सारे पोर्ट हैं, IP एड्रेस एक ही होता है, डिफाइंड होता है, एक ही चीज़ का, एक ही पर्टिकुलर चीज़ का, एक ही पर्टिकुलर ऐप्स का एक ही IP एड्रेस होता है, और बहुत सारे पोर्ट नंबर होता है। तो हमारे सिस्टम में, हमारे जो लैपटॉप है, उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बट IP एड्रेस एक ही होता है, क्योंकि एक ही घर, कॉलोनी में बहुत सारे घर होंगे, बट वो कॉलोनी तो एक ही होगा ना, तो उस कॉलोनी का वो एड्रेस जो है ना, वही IP एड्रेस है। तो उसके बाद हम हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे। तो const सर्वर इक्वल टू HTTP, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी HTTP
डॉट क्रिएट सर्वर बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना चाहिए। क्रिएट सर्वर ये एक प्रोग्राम है, ये एक फंक्शन है, मेथड है जो ऑलरेडी Node.js प्रोवाइड करता है। मतलब HTTP के दौरान आ रहा है ये HTTP जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, HTTP वही हमें क्रिएट सर्वर प्रोवाइड कर पा रहा है। ये कॉन्स्ट सर्वर नहीं, कॉन्स्ट सर्वर तो मैंने बनाया है। ये कॉन्स्ट सर्वर ये Node.js का दिया गया है, ये भी क्रिएट सर्वर Node.js का ही है, Node.js में लिखा गया है, Node.js के जरिए आप लिख सकते हैं, सॉरी जावास्क्रिप्ट से लिख सकते हैं। ये कॉन्स्ट सर्वर है, ये Node.js का नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का है। बट ये HTTP क्रिएट सर्वर ये Node.js का है। ये HTTP जो मॉड्यूल है, क्योंकि Node.js में जितने भी फाइल्स है, फोल्डर है, उसे हर एक फाइल को एक एक मॉड्यूल कहा जाता है। तो HTTP एक फाइल है। जब मैंने Node.js डाउनलोड किया, जब आप इंस्टॉल किए हो अपने सिस्टम में, तब HTTP एक फाइल डाउनलोड हुआ है उस Node.js में। वो Node.js ने खुद सारे के सारे लेके आए हैं। तो वही HTTP में एक क्रिएट सर्वर एक मेथड है, एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्रिएट सर्वर, उसी में एक कॉलबैक फंक्शन लिखेंगे REQ, RES। अब बताएं ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है? अब डर जाएंगे शायद। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ज़्यादा कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट जो आप रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको आपके इस 127 जो यहाँ पे 127.0.0.1 में जो आपको कोई रिक्वेस्ट आएगा, तो इस रिक्वेस्ट मेथड से, ये रिक्वेस्ट भी HTTP का ही है, और रेस्पॉन्स जो आपका सर्वर रेस्पॉन्स देगा बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वेस्ट, क्योंकि यूज़र जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसी के दौरान अनुसार एक रेस्पॉन्स दिया जाएगा कि आप उस रिक्वेस्ट के में क्या था। तो ये ऐसा लिखने का। वैसे यहाँ इसके अंदर एक फंक्शन होता है, बट यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना प्रेफर करूँगा मोस्टली। फैट एरो फंक्शन, इसे फैट एरो फंक्शन कहते हैं। तो हमारा ये इतना तो लिखना होगा बन गया। उसके बाद एक सर्वर को बनाया तो सर्वर को लिसन भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये देखिए सर्वर लिसन कैसे करता है। सर्वर ये जो वेरिएबल है, ये सर्वर, ये जो मेरा सर्वर दिख रहा है, अब इसी सर्वर का मैंने लिखा सर्वर डॉट लिसन, LISTEN लिसन। मैंने यहाँ पे ऊपर जो पोर्ट नंबर डिफाइन करके रखा है PORT पोर्ट 8005, इसी में ये लिसन होगा। हाँ मैंने सही कहा, इसी में लिसन होगा। तो क्या बोला था, PORT पोर्ट, वैसे पोर्ट मैंने डिफाइन कर दिया, कॉमा। उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करेंगे, सॉरी टेम्पलेट स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट का AES6 वर्जन में आया था। तो हमारा लोकल होस्ट कॉल बैक फंक्शन, इसमें हम console.log करेंगे, console.log हम लिखेंगे सर्वर। यहाँ पे भी हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे क्योंकि वो बेहतर होगा, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर हम, ये भी जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है टेम्पलेट स्ट्रिंग। जो आप कुछ भी आप लिखेंगे उसके हम उसमें अंदर अगर आप वैल्यू पास करना चाहते हैं, वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू भी शो होगा। जो वैल्यू आप शो करना चाहते हैं वो अगर वेरिएबल में होगा तो वो वेरिएबल आप मेंशन कर सकते हो स्ट्रिंग में, बट ऐसे वेरिएबल का नाम आप मेंशन नहीं कर सकते नॉर्मल स्ट्रिंग में। जैसे कि हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली PORT पोर्ट, ये हम PORT पोर्ट ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट इनसाइड टेम्पलेट स्ट्रिंग हम वो कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं, एंड लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर
UART पोर्ट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सर्वर को रन करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने वो किया नहीं, जेसन पैकेज, जहाँ पे हमारे जितने भी पैकेज हमने नोड.जेएस इस सर्वर में हम लगाएंगे, एक्स्ट्रा जब पैकेज वो उस नोड.जेएस जेसन फाइल में रहेगा। तो हमें एक जेसन फाइल बनाना है, उसके लिए हमें नोड पैकेज मैनेजर अच्छे से आना चाहिए। तो नोड पैकेज मैनेजर वो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जब हम सिखाएंगे जावास्क्रिप्ट में, नया एक जब सीरीज़ लाऊंगा जावास्क्रिप्ट का, तब उसमें मैं npm के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा। बट अभी जान लीजिए कि npm एक नोड पैकेज मैनेजर है, जिसके सहारे नोड.जेएस में यूज़ होने वाले आपकी ऐप में जितने भी फंक्शन, मेथड या पैकेज यूज़ होगा, एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी जो होंगे, क्योंकि आप सिंपल कोड से तो बना नहीं सकते, एक्स्ट्रा फाइल्स, एक्स्ट्रा फोल्डर्स, एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब जैसे कि एक्सप्रेस हो गया, वो एक फ्रेमवर्क है, बैकएंड फ्रेमवर्क, नोड.जेएस में यूज़ होने वाले मोस्टली पॉपुलर फ्रेमवर्क जिसे हम एक्सप्रेस.जेएस कहते हैं, वो एक मॉड्यूल है, वो एक पैकेज है, सॉरी मॉड्यूल नहीं है, पैकेज है। उसे जब इंस्टॉल करेंगे तो आप npm से ही यूज़ करेंगे, नोड पैकेज मैनेजर से ही आप इंस्टॉल करेंगे। तो उसी के सहारे आपको कोड जब आप एक्सप्रेस में लिखेंगे, एक्सप्रेस.जेएस नोड.जेएस में ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा पैकेज एक ऐड करेंगे, उसका नाम क्या है, एक्सप्रेस.जेएस। तो एक्सप्रेस.जेएस आजकल आना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सप्रेस.जेएस में जब आप लिखेंगे तो कोड बहुत क्लीन रहेगा आपका। अभी यहाँ पे जितना आपने कोड लिखा एक सर्वर क्रिएट करने के लिए, कम कोड में वो सर्वर क्रिएट हो सकता है, मतलब अच्छा दिखेगा आपका कोड, ताकि कोई भी दिखेगा, कोई आपका क्लाइंट जब दिखेगा तब आप इस कोड को समझ पाएगा कि आपने क्या लिखा है। तो इसीलिए एक्सप्रेस मोस्ट और फीचर्स लाता है, जैसे कि आप जब फ्रंट एंड से कुछ फाइल लेके आएंगे तो आसानी से ले पाएंगे। आपको कुछ वीडियो रिक्वेस्ट, आपका क्लाइंट को वीडियो रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से आपको हैंडल करना आएगा। वो इसी चीज़ों के लिए एक्सप्रेस होगा। तो अगले कभी किसी वीडियो में जब एक्सप्रेस के बारे में आएंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो अभी हमें एक जेसन फोल्डर बनाना है, सॉरी जेसन फाइल बनाना है, ताकि जितने भी पैकेज होगा उसमें रहेगा। npm i उसके लिए कमांड है, npm init बस इतने आप एंटर कीजिए, टाइम लेगा। जैसे कि यहाँ पे पैकेज नेम यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, शायद आप देख सकते हैं, नोड पैकेज मैनेजर, पैकेज नेम नोड.जेएस पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे हम जैसे ही एंटर करेंगे वर्जन 1.0.0, फिर से हम एंटर करेंगे डिस्क्रिप्शन, नथिंग, कुछ लिखना नहीं है हमें। फिर एंट्री पॉइंट index.js ये ऑलरेडी ले चुका है, जैसे कि ये हमारे फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे फाइल है ऊपर, ये जो फाइल है ये उसने लिया है। एंट्री पॉइंट इसी के सहारे वो रन होगा। टेक्स्ट कमांड नहीं चाहिए, वो हमें देना नहीं है। फिर से गिटहब रिपोजिटरी जो पूरा एक्सपोर्ट हो जाएंगे डेवलप करने में, बैकएंड्स एक ऐप क्रिएट करेंगे, तब आप इसकी गिटहब रिपोजिटरी में जब ये प्रोग्राम, ये कोड पुश करेंगे तब गिटहब रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी नहीं, बाद में हम ऐड करेंगे। इसके गिटहब रिपोजिटरी हो गया। कीवर्ड्स हम लिखेंगे, खुद का नाम ही लिख लेते हैं, नहीं इंडेक्स ही देते हैं, क्या होगा। ऑथर खुद का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मेरा नाम RJ रजत हो गया। लाइसेंस ISC हो गया, हमारा क्रिएट हो गया। इज दिस ओके? यस ओके हो गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे
ऊपर हमारा पैकेज जो जेसन, ये भी जो हमारा फाइल है, ये देखिए ये बन के रेडी हो गया। नेम Node.js लर्निंग वर्जन 1.0.0, डिस्क्रिप्शन नथिंग, मेन index.js, स्क्रिप्ट टेस्ट है, कीवर्ड इंडेक्स है, ऑथर है, रजन, लाइसेंस है। ये करना ज़रूरी है ताकि नोड से जब आपके फाइल को रन करेंगे तब ये होना ज़रूरी है। तो इतना ही। अभी अगर हम पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं CLS। अभी अगर हम node इंडेक्स बस इतना लिखिए, .js लिखने की ज़रूरत नहीं है। Node.js, नोड जो है, ये जो कमांड नोड है, ये ऑलरेडी समझ जाता है। और ये फाइल जब आप रन करेंगे, सिर्फ Node.js नहीं, जावास्क्रिप्ट से भी आप जब कोड लिखेंगे ब्राउज़र में या तो ब्राउज़र के लिए जब कोड लिखेंगे क्लाइंट साइड तो ब्राउज़र में ओपन होगा ना, तो बिना Node.js के लिखना पड़ेगा। तो उस तब Node.js की यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो कमांड लाइन में आप जब इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तब नोड कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, तब नोड से ही उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। नोड और इंडेक्स जिसे आप एंटर करेंगे, देखिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8005, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8005। जैसे मैंने एंटर किया, इसी पोर्ट नंबर में, ये जो पोर्ट नंबर है इसी पोर्ट नंबर में ये खुल रहा है। तो अभी हम और थोड़ा एडवांस लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा सर्वर रनिंग पोर्ट में, अगर हम किसी और क्लाइंट ने, अगर यू ब्राउज़र में हमारा ऐप रन स्टेट में पूरा लॉन्च हो चुका है और किसी ने कि हमारे सर्वर में कुछ रिक्वेस्ट भेजा, तो कुछ URL भी तो होना चाहिए ताकि वो जो रिक्वेस्ट हिट भेज रहा है वो हमारे सर्वर में जाके हिट कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी URL में जाके हिट होगा। जैसे कि www.google.com या www.youtube.com आप सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर में, उस सर्वर की किसी एक URL में जाके हिट होता है। उस URL से जो रिस्पॉन्स आता है, उस सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है, पढ़ता है कि आपने क्या भेजा है, उसी के दौरान उस URL में हिट करने के बाद जो उसका जो रेस्पॉन्स पार्ट है वो भेजेगा सर्वर बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट। तो उसके लिए हम request.url कंडीशन लगाते हैं। इससे पहले हम कंडीशन लगाते हैं कि if request.url double equal string double quote, not string, double quote slash, अगर होम लिखें तो यूज़र जब भी कुछ लोकल होस्ट पोर्ट नंबर इतना स्लैश होम जब लिखेगा तब वो इसी ये जो इफ रिक्वेस्ट URL इसी हमें आके हिट करेगा, ऐसे हम इंग्लिश में। तो बदले में रेस्पॉन्स भी तो होना चाहिए ना, तो हम रेस्पॉन्स लिखेंगे response.end, एक हम URL लिखेंगे, सॉरी नॉट URL, एक एलिमेंट्स लिखेंगे HTML में, h1 ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर आप कुछ भी टैग्स लिख सकते हैं। हेलो, वेलकम टू माय ऐप, बस इतने। हमने सेव किया, सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, नोड इंडेक्स सर्वर इज रनिंग। अभी अगर हम
और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डबल इक्वल टू ये देना मत भूलिएगा कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आप जो भी लिखेंगे, जो आप स्लैश यूआरएल भेजेंगे, वो आगे इस स्लैश होम से मैच करेगा, क्योंकि आप स्लैश होम ही भेजेंगे ना, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर इतने के बाद आप स्लैश होम भेजेंगे, तो ये स्लैश होम आप भेज रहे हैं इस जगह में, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आप भेज रहे हैं, और ये स्लैश होम आपके स्लैश इस होम में जाके मैच होगा। और ये की सेंसिटिव है कि आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर में एच होम लिखा हुआ है, तो आपको भी स्मॉल एच स्मॉल में होना चाहिए, होना पड़ेगा, तभी जाके ये रेस्पॉन्स डॉट एंड मतलब ये सेंड करेगा, रेस्पॉन्स भेजेगा आपको सब ब्राउज़र में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हमने देखिए हेलो वेलकम टू माय ऐप, हम देख सकते हैं जैसे हमने 127.0.0.8004/home में आपने ये हिट किया, तब वो हेलो वेलकम टू माय ऐप लॉन्च हुआ है। तो आप देख सकते हैं हेलो वेलकम टू माय। अगर आप दूसरा भी लगा सकते हैं, एल्स इफ, दूसरा भी लगा सकते हैं, if request dot url double equal to about slash, अगर आप देते हैं तो ये इस अबाउट पेज में जाएगा। तो हम भेजेंगे response dot end h1 like this, h1 hello welcome to my about page, राइट, ऐसा आप लिख सकते हैं। थोड़ा इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, शायद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से अच्छे से शो होगा। और इन्वर्टेड कॉमा देगा, बिल्कुल पूरा कोड नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं उनका कोड बन गया। कंट्रोल सी दबा के आपको रीस्टार्ट करना है, कंट्रोल सी से रीस्टार्ट, एन फिर से अगर NODE नोड इंडेक्स फिर से स्टार्ट हो गया, एन अभी अगर स्लैश अबाउट देंगे, हेलो वेलकम टू माय अबाउट पेज, हम देख सकते हैं। अगर इसी को हम अगर चेंज कर सकते हैं, अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं होम, हेलो वेलकम टू माय ऐप, इसी को हम अगर फिर से चेंज करते हैं, ABOUT चेंज कर देते हैं, अबाउट पेज चेंज करते हैं, अबाउट पेज क्योंकि अबाउट में है, होम पेज में जाने से HOME होम। थोड़ा अगर टेक्स्ट भी चेंज करना चाहते हैं, हेलो देयर वेलकम टू माय ऐप, है कि नहीं, बस इतना ताकि आपको दिख सके। HOME होम, मैंने चेंज किया बट नहीं होगा, कंट्रोल सी से आप इसको रीस्टार्ट करेंगे, नोड इंडेक्स फिर से रीस्टार्ट किया हमने, नोड से हम कंट्रोल सी से हम सर्वर को स्टॉप करेंगे, फिर से अगर चलाना है तो ये कमांड। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन कीप लर्निंग, ओके, सीखते रहिए। तो आज करेंगे